خادم ایونجلسٹ ایف پی صالح صاحب موجود ہیں۔ آج ہم بائبل کی روشنی میں ان کے روحوں کے متعلق ہیں۔ خداوند کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلام ہو۔ روحوں کے متعلق جب ہم کلام مقدس میں سے سیکھتے ہیں تو خداوند نے انسان کو بھی روح دی ہے اور اس کے نسلوں میں زندگی پیدا ہوتا ہے، اور پھر ہم روحوں کے متعلق جب جانتے تو یہ ایک لمبا چیپٹر ہے، لیکن ہم کلام مقدس میں سے تھوڑا سیکھنے کی کوشش کریں گے کیونکہ ہمارے پاس محدود وقت ہے۔ تو آپ سب سے پہلے اپنے سوالات جو ہیں وہ بیان کر سکتے ہیں کہ آپ کیا سیکھنا چاہتے ہیں۔ سر ہمارا سوال یہ ہے، ہم تخلیق آدم کے متعلق تھوڑا جاننا چاہتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، تخلیق آدم کے بارے میں۔ اور کوئی سوال؟ مرنے کے بعد روحیں کہاں جاتی ہیں؟ مرنے کے بعد روحیں کہاں جاتی ہیں؟ اور میرا سوال کہ عالم رواں کیا ہے؟ عالم ارواح کیا ہے؟ اور کوئی سوال؟ فرشتے کیا ہیں؟ فرشتے کیا ہیں اور ان کو کیسے بنایا سر گیا؟ ہمارا ایک اور سوال ہے، کیا باپ دادا کی روحیں واپس آ کر ہم سے باتیں کرتی ہیں؟ کیا باپ دادا کی روحیں واپس آ کر ہمارے ساتھ باتیں کرتی ہیں؟ ہم ان سارے سوالوں کا جواب کلام مقدس میں سے تلاش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کلام مقدس میں سے خدائے 2 باب اور اس کی 7ویں آیت کو دیکھ لیتے ہیں۔ کلام مقدس میں سے خدائے کی کتاب 2 باب اور اس کی 7ویں آیت۔ اور خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نسلوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ کلام مقدس میں صاف طور پر یہ بات لکھی ہے، عیاں ہے کہ خدا نے آدم کو مٹی سے بنایا ہے اور اس کے نسلوں میں زندگی کا دم پھونکا ہے۔ جب ہم پہلے باب میں پڑھتے دیکھتے تو یہاں پر ہم کلام مقدس میں تخلیق کے بارے میں جانتے ہیں کہ خدا نے جو کچھ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں زمین کے اوپر ان سب کو بنایا ہے، کہا ہے اور وہ بن گئی ہیں۔ لیکن فرق یہ ہے کہ خدا نے آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور اس نے مٹی لی ہے اور پتلا بنایا ہے اور اس کے نسلوں میں زندگی کا نام کا ہے، یہی روح ہے۔ میرے عزیزو، خدا نے روشنی بنائی ہے، اس نے تاریخی بنائی ہے، اس نے پانی، زمین، آسمان، سمندر، گھاس، سبزیاں، درخت، سورج، چاند، ستارے، پانی، جانور، مچھلیاں، چرند، پرند، درند، حتیٰ کہ دنیا جہاں کی جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں وہ ساری کی ساری خدا نے کہا ہو جا، بن جا، وہ بن گئی ہیں۔ لیکن کلام مقدس میں امثال کی کتاب میں اس کے 8ویں باب میں 22ویں آیت سے جب ہم واقعات تک پڑھتے ہیں وہاں پر ہم خدا پاک روح کو لکھا ہے، ابتدا میں زمین تھی، ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا اور خدا کی روح پانیوں کی سطح پر کیا کرتی تھی؟ جنبش کرتی تھی۔ ہم یہاں پر اور پھر امثال میں جا کر یہ سب بات اس کو عیاں کرتے ہیں اور ہم سیکھ لیتے ہیں، کلام صاف طور پر ہمیں یہ سب باتیں بتا دیتا ہے۔ میرے عزیزو، کلام مقدس میں سے جب ہم روحوں کے بارے میں سیکھتے 22 کی کتاب اور اس کا 9 باب اور اس کی 9 باب اور اس کی 5ویں اور 6ٹھی آیت، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ 22 کی کتاب ہے کلام مقدس میں سے، لکھا ہے کیونکہ زندہ جانتے ہیں کہ وہ مریں گے پر مردے کچھ نہیں جانتے اور ان کے لیے اور کچھ اجر نہیں کیونکہ ان کی یاد جاتی رہی۔ اب ان کی محبت اور عداوت و حسد سب نیست ہو گئے اور تا ابد ان سب کاموں میں جو دنیا میں کیے جاتے ہیں ان کا کوئی حصہ اور بکرا نہیں ہے۔ کلام الہی میں سلیمان بادشاہ 22 کام میں وہ فرماتے کہتے کہ جو زندہ لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ مریں گے، اور آگے وہ لکھتے ہیں پر مردے کچھ نہیں جانتے، مردے کچھ نہیں جانتے اور ان کے لیے اور کچھ اجر بھی نہیں کیونکہ ان کی یاد جاتی رہی ہے۔ اب ان کی محبت و عداوت و حسد سب نیست ہو گئے ہیں
और तब उन सब कामों में जो दुनिया में किए जाते हैं उनका कोई हिस्सा और कोई बकरा नहीं है। मेरे अजीज, जब हम तख्लीक कायनात के बारे में जानते देखते आदम की पैदाइश को दूसरा बाब और उसकी 7वीं आयत में देखते तो खुदा ने उसे मिट्टी से तैयार किया है। और फिर जिस्म, जान और रूह, हम इन तीनों को देखते हैं। जिस्म, गोश्त, हड्डियाँ और खून, ये ज़मीन ही की मिट्टी से सब कुछ तैयार किया गया है। मेरे अजीज, रूह जो है खुदावंद ने इंसान के नथनों में जिंदगी का जो दम फूंका, जो रूह फूंकी, तो इससे इंसान की जान हुआ। बस ये साबित बात होती है कि खुदा ने इंसान को एक रूह दी है। रूह ही असल में जिंदगी है जो उसे लिए फिरती है और घूमती है। मेरे अजीज, जब हम कलाम मुकद्दस में पैदाइश 3:17 को देखते और पढ़ते तो वहाँ पर लिखा है कि जब इंसान मरता है तो वो नवा लिखा है कि तू खाक है, उसके खाक में लौट जाएगा। और फिर रूह के मुतालिक है जो हमारा आज का स्पेशल सब्जेक्ट है, जिसके बारे में हमने सीखना है। हमने आज रूहों के बारे में सीखना है। तो फिर रूह जो है वो जिस्म मिट्टी से लिया गया, मिट्टी में चला गया। अब रूह जो है वो रूहों की जगह पर वो चली जाती है। कलाम मुकद्दस में हमने देखना है, कलाम मुकद्दस में आलम अरवा में जाती है। कहाँ जाती है? आलम अरवा में। आलम अरवा का मतलब है तमाम इंसानों की रूहों की जगह। जितनी कौमें बसे, जितने कबीले, जितने लोग जहाँ पर बसे, सब मरने के बाद उनकी रूहें आलम अरवा में जाती है। कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं रोमियो 8:16 में हम देखते हैं कि रूह खुद हमारी रूह के साथ ये गवाही देती है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। क्या है? हम खुदा के यानी बेटे हैं। रूह कहता है, यानी एक रूह हमें खुदावंद की तरफ से मिला है और खुदावंद का रूह हमारे साथ मिलकर ये गवाही देता है। सवाल किया गया था कि फरिश्ते क्या हैं। मेरे अजीज, कलाम मुकद्दस में जो बात लिखी है, फरिश्ते भी रूहें हैं। फरिश्ते भी रूहें हैं। अगर आप पढ़ना चाहें इब्रानियों 1:14 में ये बात लिखी है, क्या वो सब खिदमत गुजार रूहें नहीं जो खिदमत गुजारी का काम करती हैं, जो खुशखबरी का कलाम भी लाती हैं। मुकद्दसा मरियम को भी जिब्राइल फरिश्ते ने खुशखबरी का पैगाम दिया, सलाम किया। मेरे अजीज, और भी कलाम इलाही में हम ये देखते। दूसरा सवाल ये था कि फरिश्तों को किस मादे से बनाया गया है, किस चीज़ से बनाया गया है। तो कलाम मुकद्दस से ये आया बात होती कि उन्हें आग से तैयार किया गया है। कैसे? आग से तैयार किया गया है। और इंसान को मिट्टी से, इसलिए जो आग से तैयार हुआ है उसमें ज़्यादा कुव्वत, ज़्यादा ताकत है। और इंसान मिट्टी से है, इसलिए ये बहुत कमज़ोर मखलूक कहलाती है। मेरे अजीज, फरिश्ते भी रूहें हैं। जिस्म मरता है और रूह कभी मरती नहीं है। आइए कलाम मुकद्दस में से रूह का अजीज उसका 16वां बाब और उसकी 22वीं और 23वीं आयत का मुताला करते हैं। अगर किसी ने निकाला है तो इसे जल्द से पढ़ लीजिए। रूह का 16वां बाब और उसकी 22वीं और 23वीं आयत। ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया और ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर और फरिश्तों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में पहुंचा इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया। और दौलतमंद भी हुआ और दफन हुआ। और दौलतमंद भी हुआ, दफन हुआ। उसने आलम अरवा के दरमियान अज़ाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाई इब्राहिम को दूर से देखा इब्राहिम को दूर से देखा और उसकी गोद में लाजर को। हम गरीब लाजर की और अमीर की स्टोरी से वाकिफ हैं। जब लाजर मरता, गरीब मरता, उसे बाप इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया जाता। और जब अमीर मरता तो फरिश्ते आते और उसे अज़ाब वाली जगह पर, और आगे लिखा है कि आलम अरमा में डाल दिया गया है। मेरे अजीज, वहाँ पर कलाम मुकद्दस हम देखते हैं कि वो इब्राहिम को पहचान लेता है, लाजर को पहचान लेता है और वो कहता है कि मैं यहाँ पर अज़ाब में हूँ, कि तू लाजर को भेज दे। एक उंगली का सरा
सिरा डुबो कर पानी में मेरी ज़बान को तर करे क्योंकि मैं बड़े अजाब में हूँ। लेकिन बाप इब्राहिम कहते हैं ना तू इधर आ सकता है ना हम इधर आ सकते हैं, तेरे और हमारे दरमियान में एक गहरा गड़ा है, यही अथा गड़ा है। मेरे अजीज, हम यहाँ देखते हैं यही आलमे अरवा की जगह है। यही क्या है? आलमे की जगह है। और आसमान से जो गिराए हुए फरिश्ते थे जिन्होंने बदी की, गुनाह किया, और कुछ उलमाए दीन का ये ख्याल है कि बजाय 6 बाब और उसकी पहली से आयत से 6 आयत तक वहाँ पर लिखा है कि खुदा के बेटों ने आदम की बेटियों के साथ, आदमी की बेटियों के साथ उनकी शादियाँ की, उनसे जमार सूर में पैदा हुए। और कुछ का ये ख्याल है, वो कहते हैं कि उन्होंने ये बदी की और गुनाह किया और उन्हें भी इस अथाह गड्ढे के अंदर बंद कर दिया गया है और उसे सील कर दिया गया है। और लिखा है कि उसका बादशाह जो है अथाह गड्ढे का वो अबलीस बजाते खुद है। ये बात हम देखते हैं कि तमाम जो लोग मरते हैं उनकी रूहें जो हैं वो आलमे अरवा में जाती हैं। हम और आगे बढ़ते हैं, तमाम नबियों की रूहें भी वहीं पर हैं, यानी आलमे अरवा के अंदर। मेरे अजीज, आलमे अरवा तमाम रूहों की जगह है। आलमे अरवा में दर्जाबंदी है। आलमे अरवा में एक साइड पे आज़ाद की जगह पर है, आज़ाद की जगह रखी है, एक जगह पर आराम की जगह जहाँ पर नबी और पैगंबर हैं। और हम ये सब देखते हैं क्योंकि हम गरीब लाजर और अमीर की स्टोरी से ये सब सीख लेते हैं मेरे अजीज। लेकिन कलीसिया के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, वो ये है मत्ती रसूल की अंजील और उसका 16वां बाब और उसकी 18वीं आयत में लिखा है, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलमे अरवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। पहली बात जो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, कलीसिया के लिए खुशखबरी है, कलाम मुकद्दस में से लिखा है कि तू पतरस है और मैं तुझ पर एक कलीसिया कायम करूंगा और तू एक चट्टान कहलाएगा, एक पत्थर है और पत्थर पर मैं कलीसिया कायम करूंगा जिस पर आलमे अरवा के दरवाजे इस पर गालिब ना आएंगे। मेरे अजीज, ये बदरूहों की जगह है, लेकिन ये दरवाजे कलीसिया पर जो है ये गालिब नहीं आने के। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है मेरे अजीज। अमाल 3:27 को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, इसलिए कि तू मेरी जान को आलमे अरवा में ना छोड़ेगा और ना अपने मुकद्दस को सड़ने की नौबत पहुंचने देगा। यहाँ पर पेशनगोई के तौर पर और खुदा के बंदा ने ज़बूर 16 और उसकी 10 आयत को कोट किया है, क्योंकि तू ना मेरी जान को पताल में रहने देगा ना अपने मुकद्दस को सड़ने देगा। मेरे अजीज, अमाल की किताब और उसका 2 बाब और उसकी 31 आयत में इसको पेशन गोई कहा गया है। ये दाऊद की पेशन गोई है कि खुदावंद यीशु मसीह आलमे अरवा में नहीं ठहर सकते, और फिर लिखा है कि वो जी उठेंगे आलमे अरवा में हर के वो छोड़े ना जाएंगे, ना उसके जिस्म को सड़ने की नौबत पहुंचेगी। मत्ती 28:50 में ये बात लिखी है, यीशु ने फिर बड़ी आवाज से चलाकर जान दी। सलीब की चौखट पर वो तमाम इंसानों के लिए सलीब की चौखट पर बलिदान हो गए। अब हमें सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाना है और बपतिस्मा लेना है। और लिखा है कलाम मुकद्दस में मत्ती 28 बाब और 51 आयत के अंदर, और मुकद्दस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और जमीन दर्जी और चट्टानें तड़क गई। कलाम मुकद्दस के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह की मौत के वक्त मुकद्दस का पर्दा जो है ऊपर से नीचे तक फट जाता है और फिर लिखा है 2 टुकड़ों में तकसीम हो जाता है और जमीन दर्ज जाती है और चट्टानें तड़क जाती हैं। पहला पतरस और उसका 3 बाब और उसकी 19 आयत, इसको पढ़ दीजिए कलाम मुकद्दस में से। पहला पतरस 1 बाब और 19 आयत। इसी में उसने जाकर उन कैदी रूहों में मनादी की, यानी आलमे अरवा के अंदर खुदावंद यीशु मसीह जब सलीब की चौखट पर उन्होंने जो हमने पहले आयत पढ़ी है
यीशु ने फिर बड़ी आवाज से चिल्लाकर अपनी जान दे दी। और इसके बाद जब रूह जो है, क्योंकि वो जिस्म जो मुकद्दस मरियम के माध्यम से लिया, वो स्लेब की चौखट पर बलिदान हो गया। और खुदावंद यीशु मसीह की रूह जो है, यहाँ पर पतरस के मुताबिक पहला पतरस और उसका 3 बाब और 29 आयत के मुताबिक इसी में उसने जाकर उन कैदी रूहों में क्या की है, मनादी की। अगर हम कलाम मुकद्दस में से मत्ती 28 बाब और उसकी 52 और 53 आयत को पढ़ लेते तो वहाँ पर और भी बात को आईना कर दिया जाता है, लिखा है और कब्रें खुल गई, और कब्रें खुल गई और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे। और उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकलकर मुकद्दस शहर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। खुदावंद यीशु मसीह मरे, उनका बदन मर गया, स्लेब की चौखट पर है। रूह जो है वो पहला पतरस 3:19 के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह आलम अरवा में गए और वहाँ पर ये बात लिखी है कि उन्होंने वहाँ पर जाके मनादी की है। और जब मनादी की है और फिर जो रूहें खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आई हैं, तो यहाँ पर उनके मुतालिक लिखा है, कब्रें खुल गई और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे, और उसके जी उठने के बाद कब्रों में से निकलकर मुकद्दस शहर को गए और बहुतों को दिखाई दी। पहला पतरस 3 बाब और उसकी 22वीं आयत में लिखा है, वो आसमान पर जाकर खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। कहाँ जाकर? आसमान पर जाकर खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है, और फरिश्ते और इख्तियारात और कुदरतें उसके ताबे की गई हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने अपना बदन स्लेब की चौखट पर बलिदान होने के लिए दे दिया है, और उसके हाथ पाँव में कील लगा दिए गए, बहुत पीटा गया, कोड़े लगाए गए, कांटों का ताज रखा गया, और इसके बाद स्लेब की चौखट पर मर गए, शहीद हो गए। मेरे अजीज, उन्होंने नस्ल आदम के लिए अपना लहू बहा दिया है, कुर्बानी दे दी है, और इसके बाद जब वो जिंदा हुई, कब्र में रखे गए, तो जिंदा हुए, फिर वो आसमान पर गए। और इसके बारे में पहला पतरस 3 बाब और 22 आयत में ये बात लिखी है कि उसके इख्तियार में फरिश्तों को दे दिया गया है, और उसे इख्तियारात दिए गए हैं, और उसके ताबे कुदरतें जो है उसके ताबे कर दी गई हैं। शिकायत में लिखा है, उसे आसमान का और ज़मीन का मुल्क इख्तियार दिया गया है। मेरा ये ख्याल है, तो कलाम मुकद्दस की रोशनी में हम ये सब देख रहे हैं, ये सब हमारे ही सवालात हैं, जो हमने सारे सवाल हमने किए हैं, ये इन्हीं ही के ये जवाबात हैं। हमने अभी तक रूहों के मुतालिक ये सीखा है कि मरने के बाद रूहें कहाँ जाती हैं। तो मरने के बाद रूहें कहाँ जाती हैं? आलम अरवा में जाती हैं। ये हमने कलाम मुकद्दस में से सीख लिया है। हमने गरीब लाजर और अमीर की स्टोरी थी, ये स्टोरी खुदावंद यीशु मसीह ने खुद बताई है। ये कलाम है और ये अटल और हकीकत पर मबनी है। अब हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं कि आलम अरवा का इख्तियार जो है वो किसके पास है। उसे कुदरतें, इख्तियारात, फरिश्ते, आसमान, ज़मीन, सारा इख्तियार दिया गया है। मेरे साथ यूहन्ना का मुकाशवा उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत को हम देख लेते हैं। किसी ने निकाला है तो जल्दी से इसे पढ़ दीजिए। और जिंदा हूँ, मैं मर गया था, और देख अब लबाद जिंदा रहूंगा, और मौत और आलम अरवा की कुंजियां मेरे पास हैं। यहाँ पर हम इख्तियार की बात देखते हैं कि खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को आलम अरवा की कुंजियां दे दी हैं। आलम अरवा की यानी चाबियां दे दी हैं, उसके पास की है। वो जब मर्जी खोले, जब मर्जी बंद करे, या जिसको चाहे बंद कर दे, जिसको चाहे वो छोड़ दे। ये हम देखते हैं मुकाशवा 3:7 में उसे और भी मजबूत तरीके से पेश किया गया है। और फरीसिया की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख
कि जो कदूस और बरहक है और दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं करता और बंद किए हुए को कोई खोलता नहीं है। ये इख्तियार की बात है। अब इख्तियार जो है आलम अरमा का वो खुदावंद यीशु मसीह के पास है। मेरे अजीजों, पहला थेसलोनिकियों और उसका 4 बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, पहला थेसलोनिकियों 4 बाब और उसकी 14वीं आयत में, क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीला से उसके साथ ले आएगा। ये तेरे लिए और मेरे लिए खुशखबरी है। जो यीशु मसीह में बसते हैं, जब खुदावंद यीशु मसीह आएगा तो वो हमें जो मर चुके हैं, यानी हमसे पहले हम जिंदा जावेदा हैं, जो हमारे बाप दादा हैं और हमारे और पीछे हमारी नस्लें या हमारे बाओ अजदाद मर चुके, वो सारे के सारे खुदावंद यीशु मसीह के साथ वापस आएंगे। ये हमारे लिए खुशखबरी है। और फिर पहला थेसलोनिकी 4 बाब और उसकी 17 आयत में ये बात लिखी है, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे, ये अहम तरीन आयत है, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इसी तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहें। ये बात है मेरे अजीज, इस्तकबाल करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह की आमद सानी के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये उम्मीद मसीहों के पास है जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह दोबारा ज़मीन पर आएंगे तो तुझे मुझे लेने आएंगे। पहली बात, जो सो गए हैं उनको साथ लाएंगे, पहले वो जी उठेंगे और फिर हम जो जिंदा जावेदा होंगे, यानी कलीसिया जो जिंदा कलीसिया है, ये जिंदा आसमान पर उठाई जाएगी और हम उसका क्या करेंगे? हालेलुया। कितनी बड़ी खुशखबरी है मेरे अजीज। कलाम मुक़द्दस में लिखा है मुकाशवा 6:9 में, इसको निकाल लीजिए। मुकाशवा 6:9 में, मुकाशवा 6:9 में लिखा है, जब उसके 5वीं मोहर खोली तो मैंने कुर्बानगाह के नीचे उनकी रूहें देखी जो खुदा के कलाम के सबब से और गवाही पर कायम रहने के बायस मारे गए थे। मेरे अजीज, जो यीशु मसीह में शहीद होते हैं उनकी रूहें खुदा के सामने, कुर्बानगाह के सामने, उसके तख्त के नीचे, ये वहां कुर्बानगाह के नीचे रहती हैं। हालेलुया। मेरे अजीज, शहीदों की रूहें कभी मरती नहीं है। शहीद कहते हैं कभी मरते नहीं हैं। ये रात दिन खुदावंद के हुजूर में पुकारते हैं, चलाते हैं, कहते हैं कि तू कब तक हमारा इंसाफ नहीं करेगा। तो खुदावंद यीशु मसीह उनको व्हाइट रंग के कपड़े देते हैं। कैसे कपड़े देते हैं? वो सफेद पोशाकें उन्हें पेश की जाती हैं, यीशु मसीह लेके जाते हैं और उनको कहते हैं कि ये लो, ये पहनो और इंतजार करो। और क्या करो? अभी इंतजार करो, क्योंकि तुम्हारे और भी हम खिदमत ऐसे भाई हैं जमीन के ऊपर जिन्होंने इसी तरह जामे शहादत नोश करना है। जब तक उनका शुमार पूरा नहीं हो जाता तो मैं तब तक आप इंतजार करो। आप क्या करो? यहाँ पर इंतजार करो। मेरे अजीजों, कलाम मुक़द्दस में तीसरे आसमान का जिक्र है। किस आसमान का जिक्र है? तीसरे आसमान का जिक्र है। 2 कुरिन्थियों 12वां बाब और उसकी 4वीं आयत। इसमें मुक़द्दस पौलुस रसूल ये फरमाते कि यकायक परदोस में पहुंचकर ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं है, जो इंसान को रवा नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये आसमानी मकामों में एक परदोस को देखता है, एक ऐसी पाक पकीज़ा और एक ऐसे परदोस को देखता है जहाँ पर मुक़द्दसीन रहते हैं। मेरे अजीज, डाकू खुदाम यीशु मसीह को जब मसलूब किया गया तो ये सब जानते हैं दाएं बाएं कितने डाकू, एक इधर एक इधर, 2 डाकू हैं और वो यीशु मसीह पर जान तान करता है। तू नबी है, पैगंबर है, तो खुदा का बेटा अपने आप को कहता है, तो तू आप भी बच, हमें भी बचा। और फिर दूसरा कहता है कि हम अपने किए की सजा पाते हैं और वो यीशु मसीह पर ईमान ले आता और वो कहता है कि खुदा जब तो अपनी बादशाही में है तो मुझे भी याद करना।
और खुदा यीशु मसीह से क्या कहते हैं कि तू आज ही रात मेरे साथ कहाँ होगा? फिरदौस में होगा। मेरे अजीज, जब हम फिरदौस की बात करते हैं तो फिर बाप इब्राहिम और नबियों और पैगंबरों की जो रूहें थी वो आराम की जगह थी, वो फिरदौस की जगह थी। तो फिर इससे हमें ये इल्म होता है कि वो फिरदौस जो नबी पैगंबर और वो जो मुक़द्दसीन की रूहें थी, खुदा यीशु मसीह ने जब मनादी की, वो सारी की सारी आसमान पर, ये फिरदौस कहाँ चला गया है? आसमान पर चला गया है। यहाँ पर गवाही मिल रही है हमें, गवाही जो मिलती है वो हमें दूसरा क्रंथियों उसका 12वां बाब और 4थी आयत में खुदा का बंदा पौलुस रसूल ये लिखता है कि यकायक मैं फिरदौस में पहुंचकर ऐसी बातें सुनी जो कहने की, जो देखा सुना, वो कहता मैं बयान ही नहीं कर सकता। और ये तीसरे आसमान की बात करता है। मेरे अजीज, हम ये कलाम मुक़द्दस में ये देखते हैं, पढ़ते हैं। हमने कलाम मुक़द्दस में से अभी तक रूहों के बारे में सीखा है। मुक़द्दसीन की रूहें कहाँ जाती हैं, और इंसान जो इस ज़मीन पर हैं, जितनी कौमें यहाँ पर बसती हैं, उन सब की रूहें कहाँ जाती हैं, ये हम सीख चुके कि वो कहाँ जाती हैं। वो आलमे अरवा में जाती हैं। आलमे अरवा का इख्तियार, चाबियाँ, कुंजियाँ, ये सब खुदावंद यीशु मसीह के पास है। मेरे अजीज, अब हम एक आपका आखिरी सवाल था। आखिरी सवाल ये है कि क्या हमारे बाप दादा की रूहें दोबारा ज़मीन पर आकर हमसे बातें करती हैं? मेरे अजीज, आसान लफ्ज़ों में इसका जवाब ये है कि अब क्योंकि उन रूहों का इख्तियार आलमे अरवा की चाबियाँ यीशु मसीह के पास हैं, तो जब यीशु मसीह के पास हैं तो कलाम मुक़द्दस में ये बात लिखी है, मुकाशफा 3:7 के अंदर ये बात लिखी है, दाऊद की कुंजी रखता है जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता है, और बंद किए हुए को कोई खोलता नहीं है। मेरे अजीज, जब वहां जाकर खुदावंद यीशु मसीह के हुक्म के बगैर कोई उसे खोल नहीं सकता, तो फिर किस तरह हमारे पास हमारे बाप दादा की रूहें आ जाएंगी? भाई नहीं आएंगी, कभी नहीं आएंगी, क्योंकि इख्तियार खुदावंद यीशु मसीह के पास है। अब सब इख्तियार को यीशु मसीह के पास है। मेरे अजीज, कलाम इलाही में जब हम ये देखते हैं कि उसकी सारी कुदरतें, फरिश्तों का इख्तियार, आसमान का, ज़मीन का सारा इख्तियार जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को दे दिया गया है। तो फिर हमारे बाप दादा जो मर चुके पहले, अब उनकी रूहें ज़मीन पर आने की नहीं है। हमें ही उनके पास जाना है भाई, या हमें आराम की जगह पर जाना है या अज़ाब की जगह पर जाना है। मेरे अजीज, कलाम मुक़द्दस में से जब हम और ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, यही सवाल हमारे साथ जब हम टेक्सला मुक़द्दस तोमा रसूल की पहाड़ी देखने जा रहे थे, उस जगह को देखने जा रहे थे, तो हमारे साथ जो गाड़ी ड्राइव करते बड़े प्यारे भाई थे, उनका नाम आबद मसीह था, आबद अनैत मसीह ये नाम था उनका। उन्होंने मेरे साथ बहुत सारे सवाल किए और फिर उन्होंने कलाम भी सिखाया और मैंने उनसे कलाम सीखा, और फिर उन्होंने मेरे साथ ये सवाल किए, और ये सवाल उन्होंने भी किया, क्या बाप दादा की रूहें वापस आकर हमारे साथ बातें करती, आल औलाद के साथ बातें करती या इंसानों के साथ बातें करती? तो मैंने उन्हें ये जवाब दिया कि हरगिज़ नहीं आ सकती, इसलिए कि आलमे अरवा की कुंजियाँ, चाबियाँ वो यीशु मसीह के पास हैं, उसके बगैर आ नहीं सकती। तो वो इन बातों को सुनकर बहुत मुतासिर हुआ, और मैंने बड़ी बातें उनको ये सिखाई और बताई। मेरे दिल आज हम भी रूहों के मतलब सीखते और ये सीख रहे हैं कि क्या हमारे बाप दादा की रूहें वापस आकर हमसे बातें करती हैं, या हमें वहाँ की बातें बताती हैं, या वहाँ का अहवाल बताती हैं? मेरे अजीज़ों, हरगिज़ नहीं। कलाम मुक़द्दस में दूसरा क्रंथियों 11वां बाब और उसकी 14वीं आयत को हम जरूर देख लेंगे।
जिसने निकाला है ऊंची आवाज में इसको पढ़ दीजिए। और कुछ अजब नहीं, और कुछ अजब नहीं, क्योंकि शैतान भी अपने आप को क्योंकि शैतान भी अपने आप को नूरानी फरिश्ते का हम शक्ल बना लेता है। नूरानी फरिश्ते का हम शक्ल बना लेता है। यहाँ पर बात अबलीस की आती है, यहाँ पर बात शैतान की आती है। यहाँ पर कलाम मुक़द्दस में हम देखते हैं अब रूहें तो आ नहीं सकती, और यहाँ पर ये लिखा है कि जो अबलीस है, जो शैतान है, ये जो है ये अपनी शक्ल जो है वो नूरानी फरिश्तों जैसी बना लेता है, और वो जमीन पर आकर लोगों को क्या करता है, गुमराह करता है। और ऐसी बातें लोग कहते हैं। मेरे अजीज, बाप दादा की रूहें नहीं आ सकती, शैतान आ सकता है, शैतान आ सकता है, क्योंकि शैतान तो रहता ही हमारे दरमियान के अंदर है, और इंसान को वो गुमराह करता है और उसको नेकी और भलाई के कामों से रोकता है, बदी की तरफ माइल करता है, खुदा से वो मुनकिर वो इंसान को करवाता है। मेरे अजीज, कलाम मुक़द्दस में से जब हम गौर देखते हैं, ज़मीन पर जादूगर लोग हैं। ज़मीन पर क्या है? जादूगर लोग हैं, चिल्ले काटने वाले लोग हैं, और जो कब्रों में जाते हैं वो चिल्ले काटते हैं। कुछ वो नूरानी वो कहते हैं हमारे पास इल्म है, कोई कहता है काला इल्म है, कोई सफ्ती है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, और इस तरह से वो लोग जो हैं वो जादू मंत्र तलंतर ये सब करते हैं, और वो फिर अबलीस को हाजिर कर लेते हैं। और कलाम मुक़द्दस में ये बातें लिखी हैं कि अबलीस नूरानी फरिश्तों की शक्ल बनाकर, लेकर, छान कर, रूप धार कर वो सामने आ खड़ा होता है। मेरे अजीज, हम होशिया की किताब को पढ़ लेते हैं। होशिया की किताब उसका 4 बाब और उसकी 12वीं आयत। कलाम मुक़द्दस में ये लिखा है, मेरे लोग अपने काट के पुतले से सवाल करते हैं, उनका लट उनको जवाब देता है, क्योंकि बदकारी की रूह ने उनको गमराह किया है और अपने खुदा की पनाह को छोड़कर बदकारी करते हैं। मेरे अपनी 2 कलाम मुक़द्दस में हम ये बात देखते हैं कि होशिया कौम बनी इसराइल के बारे में वो फरमाते और कहते हैं कि मेरे लोग अपने काट के पुतले से सवाल करते हैं। किससे? काट के पुतले से सवाल करते हैं। उनका लट उनको जवाब देता है, क्योंकि बदकारी की रूह ने उनको क्या कर रखा है? गुमराह कर रखा है, और अपने खुदा की पनाह को छोड़कर बदकारी करते हैं। मेरे अजीजों, बुत परस्त लोग, जादूगर लोग और किले काटने वाले लोग, ये सब के सब जो हैं यही कहते हैं कि बाप दादा की रूहें वापस आकर वो हमसे बातचीत करती हैं, वहाँ का अहवाल बताती हैं और उनसे ऐसी बातें पूछते हैं। मेरे अजीज, जबकि हम कलाम मुक़द्दस में ये सब सीख चुके हैं कि अबलीस जो है, शैतान जो है, वो नूरानी फरिश्ता बनकर सामने आ खड़ा होता है और वो लोगों को गुमराह करता है। मेरे अजीज, इसी तरह लोग शैमुएल की रूह का भी हवाला देते हैं, वो भी शैतान ही का काम था, और वो औरत जो थी उसका आशना जो था वो जिन था। मेरे अजीज, अब आलम अरवाह की चाबियां यीशु मसीह के पास है, अब कोई वहां से आ नहीं सकता। खुदा ने यीशु मसीह के बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, और जो खोल दिया गया है उसको कोई बंद नहीं करता। मेरे अजीज, होशिया की किताब और उसका 5वां बाब और उसकी 4वीं आयत में इस तरह से लिखा है, उनके अमाल उनको खुदा की तरफ रुजू नहीं होने देते, क्योंकि बदकारी की रूह उनमें मौजूद है और वो खुदावंद को नहीं जानते। वो कहता है वो लोग खुदा को जानते ही नहीं हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ अबलीस को जानते हैं, शैतान को जानते हैं, क्योंकि बदकारी की रूह उनमें बसी हुई है, बदी की रूह उनमें बसी हुई है। मेरे अजीज, पहला तिमुथियुस उसका 4 बाब और उसकी 1 आयत में लिखा है, पहला तिमुथियुस 4 बाब और 1 आयत पढ़ दीजिए। लेकिन रूह साफ फरमाता है, लेकिन रूह साफ फरमाता है कि आइंदा ज़मानों में बात लोग गुमराह करने वाली रूहों और शयातीन की तालीम की तरफ मुतवज्जा होकर ईमान से
ایمان سے برگشتہ ہو جائیں گے. یہاں پر صاف صاف بات لکھ دی گئی ہے، لیکن روح صاف صاف فرماتا ہے کہ آئندہ زمانوں میں بعض لوگ گمراہ کرنے والی روحیں اور شیاطین کی تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. جادو کی کوئی کمی نہیں ہے ابھی زمین پر. جادوگر بے شمار ہیں. آپ گندے نالوں پر ایسے جادوگروں کے نام اور ان کے پتے اور سیل نمبر، موبائل نمبر آپ کو لکھے ہوئے ملیں گے. اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ جس میں جو یسوع مسیح کو ماننے والے لوگ یہ بھی جادوگری کی طرف چلے جا رہے ہیں. میرے عزیز، اور یہ لوگ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور یہ غلط تعلیم دے رہے ہیں، اور یہی لوگ کہتے ہیں کہ باپ دادا کی روحیں واپس آ کر ہم سے کیا کرتی ہیں؟ باتیں کرتی ہیں. جبکہ ہرگز جو روحیں انسانوں کی روحیں ہیں وہ واپس آ ہی نہیں سکتی. جب آ نہیں سکتی تو وہ باتیں ہی نہیں کر سکتی. میرے عزیز، ہم تھوڑی دیر کے لیے بد روحوں کے بارے میں سیکھ لیتے ہیں. اس کے بارے میں بد روحوں کے بارے میں ہم سیکھ لیتے ہیں. شیطان یا بد روحوں کا آغاز جو ہے، بد روحیں اس وقت وجود میں آئیں جب شیطان نے گناہ کیا. کس نے گناہ کیا؟ شیطان. جو شیطان بنا، جس سے بن گیا، گناہ کے سبب سے بن گیا. میرے عزیز، کلام مقدس میں ہم یہ سایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 14واں باب اور اس کی 12ویں آیت سے دیکھ لیتے ہیں. آئے صبح کے روشن ستارے، تو کیوں کر آسمان پر سے گر پڑا؟ اے قوموں کو پست کرنے والے، تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا؟ تو اپنے دل میں کہتا تھا میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا، اور میں شمالی اطراف میں ماد کے پہاڑ پر بیٹھوں گا، میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا، میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا، لیکن تو پتال میں گڑھے کی تہ میں اتر جائے گا. میرے دلوں، یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو لوسیفر فرشتہ ہے، جو خداوند آسمانی مقاموں میں جو حمد و ثنا پر تعینات تھا، ممسوک روبی ہے، طاقتور فرشتہ ہے، اور یہ رات دن خداوند کی حمد و ثنا پر تعینات ہے، اور یہ کہتا ہے اس میں غرور آ گیا ہے، اس میں تکبر آ گیا ہے. اور یہ بات کہتا ہے، یہ سایہ نبی کی کتاب اور اس کا 14واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں اسے صبح کا روشن ستارہ کہا گیا ہے. تو کیوں کر آسمان پر سے گر پڑا ہے؟ اے قوموں کو پست کرنے والے، تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا ہے؟ تو اپنے دل میں کہتا تھا میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا، میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا، میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا، میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا. یہ ہے تکبر، یہ ہے غرور، یہ ہے گھمنڈ. میرے عزیز، اب اس کے اندر جو ہے وہ بدی آ گئی ہے، گناہ آ گیا ہے، اور اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے فرشتگان ہیں جنہوں نے اس کی تائید کر دی ہے. میرے عزیز، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس کے بعد آسمان پر ان کے رہنے کی جگہ نہ رہی اور انہیں زمین پر گرا دیا گیا. آئیے کلام مقدس میں اور آگے جاتے ہیں. حزقیل کی کتاب اس کا مطالعہ کر لیتے اور یہ بات بالکل صاف اور واضح ہو جاتی. کلام کے مقدس کلام میں سے حزقیل 28 بات کو نکال لیتی اور اس کی 11ویں آیت سے میں 19ویں آیت تک پڑھتا ہوں. اور خدا کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ آئے آدم ذات، سور کے بادشاہ پر نوح کر اور اس سے کہہ، خدا یوں فرماتا ہے کہ تو خاتم الکمال، دانش سے معمور اور حسن کامل ہے. تو ادر میں آگے خدا میں رہا کرتا تھا، ہر ایک قیمتی پتھر تیری کوشش کے لیے تھا، مثلاً یاقوت سرخ اور پفراج اور الماس اور فیروزہ اور سنگ سلیمانی اور زبرجد اور نیلم اور زمرد اور گور شب چراغ
और सोने से तुझ में कातिल साजी और नगीनाबंदी की सन्नत तेरी पैदाइशी के रोज से जारी रही। तू ममसूक रोबी था, तू साया या फगन था, और मैंने तुझे खुदा के कोहे मुकद्दस पर कायम किया। तू वहाँ आछी पत्थरों के दरमियान चलता फिरता था। तू अपनी पैदाइशी के रोज से अपनी रोह रस्म में कामयाब था, जब तक कि तुझमें नाराजगी ना पाई गई। तेरी सुदागरी की फरावानी के सबब से उन्होंने तुझ में जुल्म भी भर दिया और तूने गुनाह किया। इसलिए मैंने तुझको खुदा के पहाड़ पर से गंदगी की तरफ फेंक दिया और तुझ साया अफगन रोबी को आछी पत्थरों के दरमियान से फना कर दिया। तेरा दिल तेरे हुस्न पर गमन करता था, तूने अपने जमाल के सबब से अपनी हिकमत खो दी। मैंने तुझे जमीन पर पटक दिया और बादशाहों के सामने रख दिया है ताकि वो तुझे देख लें। तूने अपनी बदकारी की कसरत और अपनी सुदागरी की नाराजगी से अपने मुकद्दसों को नापाक किया है। इसलिए मैं तेरे अंदर से आग को निकाल दूंगा जो तुझे भस्म कर देगी, और मैं तेरे सब देखने वालों की आंखों के सामने तुझे जमीन पर राख कर दूंगा। कौमों के दरमियान वो सब जो तुझको जानते हैं तुझे देखकर हैरान होंगे। तू जाए इबरत होगा और बाकी ना रहेगा। हम कलाम मुकद्दस में यहाँ बात उस फरिश्ते के बारे में हम देखते हैं, मेरे अजीज, और उस ग्रोह के बारे में देखते हैं जिसने बदी की, जिसने गुनाह किया, जिसके लिए खुदा ने ये सब कुछ कहा। और ये कहा गया है कि वो ममसूक रोगी था, वो पाक फरिश्ता था। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो कोहे मुकद्दस पर उसे कायम किया गया, रखा गया, और वो आछी पत्थरों के दरमियान में रहता था। वो आग के अंदर रहता था, वो आतश के अंदर रहता था। मेरे अजीज, कलाम मुकद्दस में ये बात लिखी है जो बड़ी अहम तरीन है। वो ये बात है कलाम मुकद्दस के अंदर कि उसने घमंड किया है। उसने क्या किया है? घमंड किया है। लिखा है तेरा दिल तेरे हुस्न पर घमंड करता था, तूने अपने जमाल के सबब से अपनी हिकमत को खो दिया। मैंने तुझे जमीन पर पटक दिया और बादशाहों के सामने क्या कर दिया है? रख दिया है। इसकी जिंदगी में घमंड आ गया है और ये कहता है कि मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत हूँ, और ये कहता है कि मैं भी खुदा हूँ। वो कहता है कि मैं अपना तख्त खुदा से भी ऊंचा लगाऊंगा, जो हमने ये साया की किताब में पढ़ा है। और उसने ऐसे ऐसे दावे किए हैं। मेरे अजीज कलाम मुकद्दस में ये सब बातें आई हैं कि उसके अंदर गुनाह आ गया है, बदी आ गई है, उसके सबब से उसे जमीन पर फेंक दिया गया है, उसे गंदगी की तरफ फेंक दिया गया है। मेरे अजीजों, और हम ये बात कलाम मुकद्दस में देखते हैं कि जो आसमान से गिराए हुए फरिश्ते थे, इन्होंने एक और आकर जमीन पर एक बड़ा काम किया है, खुलवार किया है इंसानों के साथ। वो ये है पैदाइश की बात, और उसकी पहली 6 आयत कलाम मुकद्दस में से इसको भी देख लेते हैं। कोई पढ़ने में रहनुमाई करे पैदाइश 6 बाब और उसकी पहली आयत से। जब रूहे जमीन पर आदमी बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां पैदा हुई, तो खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा कि वो खूबसूरत हैं, और जिनको उन्होंने चुना उनसे ब्याह कर लिया। तब खुदावन ने कहा मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मजम्मत ना करती रहेगी, क्योंकि वो भी तो बशर है, तो भी उसकी उम्र 120 बरस की होगी। 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में जमीन पर जब्बार थे, और बाद में जब खुदा के बेटे इंसान की बेटियों के पास गए, तो उनके लिए उनसे औलाद हुई। यही कदीम जमाना के सुरमा है, जो बड़े नामवर हुए हैं। और खुदावन ने देखा जमीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई, और उसके दिल के तसव्वुर और
اور خیال सदा बुरे ही होते सदा हैं। बुरे ही होते हैं। जब खुदावन जमीन पर तब खुदावन जमीन पर इंसान को पैदा करने से इंसान को पैदा करने से मलूल हुआ मालूम हुआ और दिल में गम किया। और दिल में गम किया। मेरे दिलों, यहाँ पर हम देखते हैं आसमान से गिराए हुए फरिश्तों के मतलब प्रोफेसर, डॉक्टर, मुफक्करीन, वो इसके बारे में दो राय रखते हैं। पहली राय ये है कि ये औलाद जो खुदा के बेटे जो कहलाते, जो यहाँ पर लिखा, ये सेत की औलाद है। कौन सी औलाद है? सेत की औलाद है। और उन्होंने आगे जाकर काहिन की बेटियों के साथ शादी की है और उनसे औलादें हुई हैं, और वो इस तरह से बयान करते। और फिर कलाम इलाही में हम ये बात देखते हैं कि यहाँ पर जबार और सूरमों का जिक्र आता, और कुछ मुफक्करीन और उलमाए दीन और प्रोफेसर हजरात को ये बयान करते, ये बताते कि मेरे अजीज के आसमान से गिराए हुए फरिश्ते इन्होंने ज़मीन पर आकर आदम की बेटियों के साथ ब्याह कर दिया। लिखा है जब वो ज़मीन पर आदमी बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां पैदा हुई, तो खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा कि वो खूबसूरत हैं, और जिनको उन्होंने चुना उनसे ब्याह कर दिया और उनसे औलाद पैदा हुई। और यही कदीम ज़माना के सूरमा और यही जवार और सूर में यही है। और फिर कलाम इलाही में लिखा है कि खुदा ने कहा कि इंसान तो बशर है। इंसान क्या है? बशर है। और उस वक्त इंसान की बहुत लंबी लंबी उम्रें थी, 950 साल, 800 साल, 700 साल, और फिर खुदा ने 120 साल की उम्र आदम की ठहराई। और फिर कलाम मुक़द्दस में ये बात लिखी है कि सारी दुनिया ज़मीन के ऊपर इन्होंने अपना अपना तरीका बिगाड़ लिया, और खुदा फरमाते हैं कि ज़मीन का खात्मा मेरे सामने आ गया है, हर जानदार का खात्मा मेरे सामने आ गया है, हर इंसान का खात्मा मेरे सामने आ गया है। और एक बंदा राज बाज मिलता है जिसका नाम नूह था। मेरे अजीज हो, यहाँ पर हम ये बात देखते कि जब ये मर गए और फिर इनकी रूहें जो है वो बद रूहें बन गई, और मुसन्निफ़ीन, उलमाए दीन, इनके बारे में उनका ये ख्याल है कि बद रूहें जो आसमान से गिराए हुए फरिश्ते वो हैं, और फिर ये जिन्होंने ज़मीन पर आकर शादियाँ की, जवार सूर में हुए, और ये जब मरे तो ये भी बद रूहें बन गए। क्या बन गई? ये सब बद रूहें बन गए। मेरे अजीज़ कलाम मुक़द्दस में से हम ये देखते हैं, कलाम इलाही के अंदर हमें ऐसे लोगों पर यकीन नहीं रखना है, ऐसे लोगों पर ईमान नहीं रखना है जो ये तालीम दें या ये बातें कहें कि हमारे मरे हुए बुजुर्ग, हमारे बाप दादा, बाऊ अजदाद, उनकी रूहें वापस ज़मीन पर आकर वो वहाँ का अहवाल बताते हैं, या वो ऐसी बातें बताते हैं। आपने इस गुमराही में हरगिज़ नहीं आना है। मेरे अजीज़, कलाम मुक़द्दस में जब हम बद रूहों के बारे में देखते हैं और इनकी जगह देखते हैं, तो एक जगह आलम अरवा है, एक जगह क्या है? आलम अरवा है, और दूसरी जगह जो है वो अथा गड़ा है। वो क्या है? अथा गड़ा है। और अथा गड़े को उसमें इन ऐसे फरिश्तों को डालकर, जिन्होंने बदी की है, जिन्होंने गुनाह किया है, उसके अंदर डालकर और वहाँ पर बड़े पत्थर रखकर उन्हें सील कर दिए थे। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि उसके ऊपर अबलीस, लूसीफर, फरिश्ता बजाते खुद बैठा है, जो उनका क्या है? बादशाह। उनका क्या है? बादशाह। मेरे अजीज, और फिर हमने ये कलाम मुक़द्दस में देखा है कि मुक़द्दसीन की रूहें तो आ नहीं सकती, और बाप दादा की रूहें तो आ नहीं सकती। अब जो रूहें आती हैं, जो कहते हैं, वो अबलीस बजाते खुद है, जिसके बारे में कलाम मुक़द्दस में हमने सीख लिया है कि अबलीस नूरानी फरिश्तों का रूप धार कर वो सामने आ खड़ा होता है। मेरे अजीज, जादूगर लोग, बुत परस्त लोग, अफूंगर,
یا دیگر اور چلے کاٹنے والے یا نورانی نوری علم یا پھر کالا علم یا اور پتہ نہیں کتنے کتنے علم رکھنے والے لوگ ہیں۔ ان سب کا انجام بہت بھیانک ہے۔ ان کا کیا ہے؟ انجام بہت بھیانک انجام ہے۔ آئیے کلام مقدس میں اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ مطلب کا 22 باب اور اس کی 15 آیت کو دیکھتے ہیں۔ کلام مقدس میں آخری باب ہے، آخری صفحہ ہے۔ مگر کتے اور جادوگر اور جادوگر اور حرامکار اور حرامکار خونی اور خونی اور بت پرست اور بت پرست اور جھوٹی بات کا اور ہر ایک جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے اور گھڑنے والا باہر رہے گا۔ کلام مقدس میں ہم یہ بات دیکھتے ہیں جادوگروں کے بارے میں اور ایسے لوگوں کے بارے میں لکھا ہے کلام مقدس میں، مگر کتے، جادوگر، حرامکار، خونی، بت پرست اور جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے اور گھڑنے والا باہر رہے گا۔ کہاں رہے گا؟ وہ خداوند کی بارگاہ میں نہیں جائے گا، وہ فردوس میں نہیں جائے گا، اس جگہ پر نہیں جائے گا، بلکہ اس کے لیے جو جگہ تیار کی گئی ہے خداوند خدا نے۔ آئیے کلام مقدس میں سے وہ بھی دیکھ لیجیے، مقدمہ کی کتاب 21 باب اور اس کی 8ویں آیت۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گنگونے لوگوں اور خونیوں اور حرامکاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک سے جلنے والی جیل میں ہوگا۔ یہ دوسری موت ہے۔ میرے عزیزوں، کلام مقدس میں یہ بات لکھی ہے جہاں پر دوسری موت کا ذکر ہے۔ ایک موت ہمیں اپنے باپ دادا سے، ہمیں باپ آدم اور اما ہوا سے ان کے گناہ کے توسط سے ملتی ہے۔ میرے عزیز، جس سے ہمارا جسم جو ہے وہ زمین میں چلا جاتا، اور یہاں پر ایک دوسری موت کا ذکر ہے۔ یہ موت جو ہے آگ اور گندک سے جلنے والی چیز میں ہوگا، جہاں ہمیں ڈالا جائے گا، جہاں ہم جائیں گے، جہاں بد روحیں جائیں گے، جہاں پر بد لوگ جائیں گے، جن کا ذکر کسی آیت کے اندر لکھا ہوا ہے۔ میرے عزیز، یہ دوسری موت ہے۔ یہ ہے مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گنگونے، گندے کام کرنے والوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور پھر جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک سے جلنے والی جیل میں ہوگا۔ یہ ہے انجام ان جادوگروں کا، ایسے لوگوں کا۔ میرے عزیز، جو زمین پر آتے، جو 2 بار پیدا ہوتے، انہوں نے ایک بار مرنا ہے۔ جو 2 بار پیدا ہوتے، انہوں نے ایک بار مرنا ہے۔ اور جو اسلام الہی کے اندر ایک بار جو پیدا ہوتا ہے، اسے 2 بار مرنا ہے، اسے 2 بار۔ یعنی وہ جو ماں کے باطن سے پیدا ہوتے اور یسوع مسیح پر ایمان نہیں لاتے، خدا پر ایمان نہیں لاتے، اور جب وہ مریں گے، مٹی میں جائیں گے اور پھر زندہ ہوں گے، پھر وہ کسی آگ کی جیل میں چل ڈالے جائیں گے۔ یہ دوسری موت۔ کتنی موتیں ہوں گی؟ اور جو ماں کے باطن سے پیدا ہوتے، خداوند پر ایمان رکھتے، یسوع مسیح پر ایمان رکھتے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، باپ بیٹے اور روح القدس کے نام میں وہ بپتسمہ لے لیتے، اپنا اس کو دے دیتے، اور یعنی ان کی دوسری پیدائش ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ اب وہ 2 دفعہ پیدا ہو گئے، خداوند سے پیدا ہو گئے، روح سے پیدا ہو گئے۔ آپ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ آپ وہ گناہ نہیں کریں گے، بلکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو یسوع مسیح میں ہیں ان پر سزا کا حکم۔ میرے عزیز، وہ ایک موت مرے اور وہ پھر تا ابد وہ خداوند کے ساتھ رہیں گے اور وہ ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔ میرے عزیز، کلام مقدس میں سے ہم یہ سب کچھ دیکھ لیتے، اور ہمارا سوال یہی ہے کہ کیا باپ دادا کی روحیں واپس آ کر وہ ہم سے باتیں کرتی ہیں؟ میرے دل بھر کے ضروری نہیں ہے اور نہیں باتیں کرتی، لیکن ابلیس آتا ہے اور وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ کلام مقدس میں 22 کی کتاب اور اس کا 9 باب اور اس کی 5ویں اور 6ٹھی آیت کو ہم دیکھ لیتے جو ہم نے شروع میں پڑھی تھی۔ وہاں پر صاف صاف خدا کا بندہ
یہ بات فرماتا، یہ بات کہتا ہے۔ لکھا ہے کلام مقدس میں، کیونکہ زندہ جانتے ہیں کہ وہ مریں گے، کیونکہ زندہ جانتے ہیں کہ وہ مریں گے، پر مردے کچھ نہیں جانتے بعد مرنے کے، اور ان کے لیے اور کچھ اجر نہیں، کیونکہ ان کی یاد جاتی رہی ہے۔ ان کی یاد کیا ہے؟ جاتی رہی ہے۔ آپ ان کی کلام مقدس میں محبت، عداوت، حسد سب نیست ہو گئے ہیں۔ سب کیا ہو گئے ہیں؟ نیست ہو گئے ہیں۔ اور تا ابد ان سب کاموں میں جو دنیا میں کیے جاتے ہیں، ان کا کوئی حساب اور بکرا۔ کلام مقدس میں یہ باتیں یہ ہم دیکھتے ہیں۔ آج ہم نے روحوں کے بارے میں سیکھا۔ پہلی بات یہ سیکھی کلام الہی کے اندر کہ روح کیا ہے۔ انسان کو جو روح ملی وہ خدا کا سانس ہے، اور پھر کلام مقدس میں ہم نے یہ دیکھا کہ فرشتے بھی روحیں ہیں، اور وہ آگ سے اور آدم مٹی سے یہ تیار ہوا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب آدم مرتا، مٹی میں چلا جاتا اس کا جسم، اور اس کی روح کہاں جاتی ہے؟ عالم ارواح میں چلی جاتی ہے۔ تمام انسانوں کے لیے روح کی جو جگہ ہے، جب ہم نے سیکھا کلام مقدس سے کہ ان کی جگہ کہاں ہے؟ عالم ارواح میں ہے۔ اور پھر ہم نے وہاں پر 2 درجے دیکھے ہیں۔ کتنے درجے دیکھے ہیں؟ 2 درجے دیکھے ہیں۔ ایک میں بد روح ہیں، جو بد لوگ ہیں۔ ہم نے امیر اور غریب کی اسٹوری سے یہ سیکھا ہے، لازر سے سیکھا ہے۔ لازر جہاں جاتا ہے وہاں پر نبیوں کی روحیں ہیں، وہاں پر باپ ابراہیم کی روح ہے، اور اسے ابراہیم کی گود میں رکھا گیا ہے، اور یہ ہم نے سیکھا ہے۔ اور پھر ہم نے وہاں پر ایک گہرا گڑھا وہ بھی دیکھا، اور پھر ہم نے بدروحوں کے بارے میں اور ان فرشتوں کے بارے میں سیکھا ہے جنہوں نے آسمان پر گناہ کیا، غرور کیا، گھمنڈ کیا، تکبر کیا، اور ان کو پھر آسمان سے گرایا گیا۔ پھر ہم نے ایسے فرشتوں کے بارے میں دیکھا جنہوں نے زمین پر بدی کی اور گناہ کیا، اور پھر ہم نے کلام الہی میں یہ صاف پڑھ لیا ہے کہ سارا اختیار خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے، آسمان کا، زمین کا، فرشتوں کا، سب کا، اور عالم ارواح کا اختیار بھی خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے۔ عالم ارواح کی کنجیاں، عالم ارواح کی چابیاں کی سب خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے۔ اور کلام الہی میں یہ ہم نے دیکھا کہ جس کو خداوند یسوع مسیح بند کرتا ہے اس کو کوئی کھول نہیں سکتا، اور جس کو یسوع مسیح کھولتا ہے اسے کوئی بند نہیں کر سکتا۔ تو میرے عزیز، ہمارے باپ دادا کی روحیں جب چلی گئیں یا چلی گئی ہیں جو پہلے، اور اب وہ واپس آنے کی نہیں ہے۔ گمراہی میں نہ رہیے، نہیں تو آگ آپ کا انتظار کرتی ہے، گندک آپ کا انتظار کرتی ہے، پھر آپ بھی دوسری موت مریں گے۔ آپ ایسے لوگوں سے نہ ملیں، جادوگر اور ہم کالا علم، گورا علم، جو بھی علم ہے، پتہ نہیں کتنے علم رکھتے، اور وہ کہتے ملتر یہ سب کچھ کرتے، اور ان کی باتوں میں ہرگز نہ آئے۔ میرے عزیزوں، باپ دادا کی روحیں ہرگز واپس نہیں آتی۔ آج کے کلاس کے وسیلہ سے خدا آپ کو اور مجھے مدد کرتے ہیں۔